Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, on your demand, I am sharing real life stories where you come to know various incidents, and through that, you get a lot of learning. So, today I will cover another incident from my Punjab National Bank, Punjabi Bagh branch. This was early days of my joining Punjab National Bank as officer. I was just 23 years old. The employees working under me were in early 30s. Three clerks were working under me. They were mainly female. Now, when you are lower in rank but higher in age, it is very difficult to have insubordination. That means a person of 23 years of age is sitting on a higher chair than the person with 30 years of age or more, having length of service ranging between 7 years, 8 years or 10 years. It is very difficult situation. Sometimes I find some frustrating comments on social media, and it is outcome of that. Because in a particular branch, these seniors are not able to manage the environment in such a fashion that this environment become friendly environment instead of tense environment. So when I was working as an officer, I observed that the people working under me are hesitant and uncomfortable due to my age constraint. So then I started thinking how to create an environment where my employees are able to work with happiness and they accept me as an officer. And this is the most important thing. The most officers they fail in this task. The moment they assume a power, they feel others should simply accept their dictate and work. But in real life situation, rank does not matter. So I found if I become friendly with my subordinates, if I give them environment of ease, they will start enjoying working with me and in turn they will give their best. So first day was as usual. There was hesitation from the employees and I was also hesitant because I was not that experienced. But second day I passed on a compliment to one of the clerk about her dressing sense. She was happy to get a compliment from officer. It was a change thing for her. Usually the seniors they only reprimand their employees. Hardly they appreciate. Then after half an hour I appreciated the other clerk also for good work done. And after 2 hours I appreciated the third one also for excellent customer service. Now I felt that ice is breaking. After lunch, one of the clerk offered me a piece of apple which she brought from the home. Okay, sir, please have this. And I readily accepted it. And that was the day when ice was broken. The barrier between a clerk and officer was broken. My staff was feeling that here is a person who is different. He does not have any egos. He is not like other bosses. He is ready to be friendly with us. And gradually, we were used to crack jokes. We were used to work hard. We were used to take care of each other. And I found that all the three subordinates, those who were working under me, were giving better output than past. Even my branch managers observed, Anil, kya jadoo kiya? He uttered, what magic you have done?
The magic was mutual trust. Magic was recognizing position of each personality. In an organization, the person may be senior or junior, but from inside, every individual is a human being. And if we are able to nurture this human being psyche, we can have good relations in the branches. And the moment we have good relation with our staff, the work will not be burden. Everybody will enjoy the work and our output will improve. In turn, our productivity improve and in turn, customer service will improve. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। अब मैं आपके जीवन के अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं एक अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। ये भी पंजाब नेशनल बैंक पंजाबी की बात है। मैं ऑफिसर था, 23 वर्ष का था, पर जो मेरे अंडर क्लर्क्स असाइन की गई थी वो तीनों फीमेल थी और अर्ली 30s में थी। और सबका अनुभव मेरे से ज़्यादा था, क्योंकि 18, 19 साल, 20 साल, 21 साल की उम्र में उन्होंने क्लर्की ज्वाइन की होगी। तो किसी का 8 साल का एक्सपीरियंस था, किसी का 9 साल का एक्सपीरियंस था, किसी का ज़्यादा भी था। और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। तो पहले दिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो क्लर्क हैं जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, ये कंफर्टेबल नहीं है मेरे साथ काम करते हुए। इनको शायद अजीब लग रहा है कि मैं कम उम्र का हूँ और हायर पोजीशन पे बैठा हूँ, और ये मेरे से ज़्यादा उम्र के हैं और बहुत दिन से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। तो वो शायद मेरी कमांड या मेरी इन सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। उस दिन मैं सोचता रहा कि ऐसा क्या करें कि ये जो हमारा बैरियर है ये टूट जाए और हम ऐसे माहौल में काम करें जहां हमारे बीच में आपस में एक कोऑर्डिनेशन हो। अगले दिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया। उनमें से एक एम्प्लॉय को मैंने कम्प्लीमेंट किया उसकी ड्रेसिंग सेंस के लिए, उसको अच्छा लगा। उसके बाद दूसरी एम्प्लॉय का मैंने काम करने के ढंग को अप्रिशिएट किया, और कुछ देर बाद तीसरे एम्प्लॉय के कस्टमर हैंडलिंग को मैंने अप्रिशिएट किया। तो मैंने देखा कि जो तीनों एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो फेस एक्सप्रेशन है और जो रिएक्शन है थोड़ा सा बदला। उनको लगा कि ये शायद कुछ डिफरेंट है अफसर, ये वो अफसर नहीं है जो बात बात पे डांटता है या काम करने के लिए कहता है, ये वो अफसर है जो हमसे बात करना चाहता है। तो लंच के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि उनमें से एक एम्प्लॉय ने मुझे सेब की एक फाक ऑफर की कि सर आप खाइए, और मैंने उसको रेडिली एक्सेप्ट किया। और उसके बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हम हंसी मजाक भी कर रहे हैं, जोक्स भी क्रैक कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और मेरे अंतर्गत जो एम्प्लॉइज हैं उनकी आउटपुट बढ़ती जा रही है। कस्टमर भी खुश हैं, ये एम्प्लॉय किसी से लड़ भी नहीं रहे हैं। और एक दिन ब्रांच मैनेजर ने कमेंट भी किया, अनिल तुमने क्या जादू किया? मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, मैं एरोगेंट नहीं हूँ अपने स्टाफ के साथ। मैं इन एम्प्लॉइज के अंदर एक रैंक नहीं देख रहा हूँ, मैं इन एम्प्लॉइज के अंदर एक इंसान देख रहा हूँ। अब ये सब इंसान है, हमारे जैसे ही हैं। भगवान ने हमें हायर पोजीशन दे दी है, इनको लोअर पोजीशन पे रखा है, पर हो सकता है कि कुछ चीज़ें इनके पास हमसे ज़्यादा हों, वहाँ से हम भी सीख सकते हैं। तो यदि हम एरोगेंट रहेंगे तो ये जो सिग्नल्स है ये पास ऑन ही नहीं होंगे, हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो सीखने के लिए ज़रूरी है कि हमारी फ्रेंडशिप हो, एक ऐसा माहौल हो जिसमें लोग खुल के बात कर सकें, अपनी बात बता सकें, अगर मैं गलती करूं तो मुझे भी सिखा सके। तो मैनेजर साहब को भी अच्छा लगा, यार आप तो अजीब आदमी हो, जो डायरेक्ट ऑफिसर आते हैं वो तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं, और आप तो मतलब क्लर्क को क्लर्क नहीं अपना दोस्त कह रहे हो। तो क्या है कि सीख क्या है? सीख ये है कि जब तक हम डिफरेंट नहीं बनेंगे, जब तक हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि माहौल लाइट हो, परफॉर्मेंस नहीं आएगी। स्ट्रक्चर्ड सिस्टम से चीज़ें नहीं चलती हैं। हमें इनोवेट करना है, हमें अपने स्टाफ को साथ लेके चलना है,
हमें इंसान को इंसान समझना है। और जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि ये जो रैंक्स हैं ये सिर्फ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, ज़्यादा अहमियत रखता है इंसान होना। तो जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, यदि हम उनके साथ इंसानों की तरह पेश आएंगे और इंसानियत की तरह उनके साथ हाथ बढ़ाएंगे तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, हम भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सोशल मीडिया पे जितने भी लोग ये फ्रस्ट्रेटेड कमेंट्स डालते हैं, उसका कारण ही है कि उनका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। उनके सुपीरियर अपनी ड्यूटी में फेल्ड है क्योंकि वो अपने एम्प्लॉइज़ को खुश नहीं रख पा रहे हैं। खुशी केवल सैलरी या पाक से नहीं आती है, खुशी आती है आप कैसे माहौल में पूरा दिन व्यतीत करते हैं। यदि आपके आसपास का माहौल लाइट है, ऐसा है जिसके अंदर आपको जाके मज़ा आता है, तो आपको सैलरी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको काम में आनंद आना शुरू हो गया तो आप सक्सेसफुल हैं। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।